Starting the chapter Private, Public and Global Enterprises along with NCERT. Uh, Aryan, there is a bit, we have done all the concepts in our previous classes, but as per the new syllabus, we have certain limitations or there are certain deletions. So the one which I'm going to do today is the one which will be coming in the exams. That is private and public difference. Then under the public, you have the three kinds of enterprises. One is the departmental, statutory, and government. And then we would be directly moving to the global, its features, and last but not the least, only the PPP. This will be the entire syllabus. So in our previous classes, we have already done what are sole proprietorship or partnership. तो अगर हम देखते हैं कि there are some services like if you look into this, there are shops owned by sole proprietor or big retail. And of course, you also have the services like medical services, legal, that can be the partnership. Right? Similarly, there are some services or some products which are only owned by the government. The post office, the telegraph department, railway, defense, these are all the public. So, पहले क्या होता था? In the earlier times, we did not have this much of private courier services. We did not have this much of what you call as a telecommunications. तो पहले most of the products or services were with the public, यानी कि the one which is owned by government. But now we are having the businesses which are operated in more than one country, that is a global enterprise. तो इसीलिए हम डिवाइड करते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. Anything which is owned by group of individuals or maybe individuals are private, sole, partnership, joint family, cooperative, etc. Whereas when it comes to the public sector, it consists of the organizations managed and owned by government. Sometimes it is not कि central government ही करेगा, it may be partly or wholly done. कुछ आपके ऐसे मिनिस्ट्रीज होती हैं तो कुछ आपके स्पेशल एक्ट से बनाए जाते हैं. The government in its industrial policy resolutions defines the area of activity in which the private and public sectors are allowed to operate. हमारे यहाँ पर हमने क्या किया था? We had not gone for a capitalist economy, we had not gone for a socialist. Instead, we had gone for a mixed economy. So, according to the Industrial Policy Resolution, the government of India had specified the approach कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रहेगा. इनफैक्ट हमारे पास में 1950 के बाद when we had the प्लानिंग कमीशन, अभी तो प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग है, तो जो पहले आपका प्लानिंग कमीशन था उसमें सेकंड हमारा जो प्लान था 5 ईयर का, दैट वाज कंप्लीटली ऑन द इंडस्ट्रीज. सो एज पर 48, देन एज पर 56 पब्लिक सेक्टर्स के लिए काफी ऑब्जेक्टिव सेटअप किए गए थे. बट इन 1991 जब हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर आप उसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कह सकते हो, द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और द ग्लोबल कॉर्पोरेशंस वर अलाउड टू एंटर इनटू द इंडियन मार्केट. उनको जो है इंडियन मार्केट के अंदर जो है किया गया था, और इसीलिए हमारे यहाँ प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल सब एग्जिस्ट करते हैं. Now, as I have already said,
that हमारा जो economy, which you might have read in your own economics also, that we have a mixed economy. So इसीलिए the government कुछ आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उसने जो है अपने अंडर रखा था, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आज हम लोग लिबरलाइज्ड, कॉम्पिटिटिव, ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, बट पहले ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, दे वर द वन which are owned by one or more government and also are accountable. They are characterized by the public ownership. जो हम लोग उनको पैसा देते हैं, हम अगर पोस्टल सर्विसेज यूज कर रहे हैं, टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग रेलवेज के सर्विसेज को यूज करते हैं, तो जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस. सो इट डिपेंड्स. अगर सर्विसेज देनी है, अ पब्लिक एंटरप्राइज मे बी हैविंग डिफरेंट नेचर. तो अगर सर्विसेज देनी है जहां हमें अपने जो सिटीजन्स हैं उनको सबसे कम सर्विसेज देनी है, तो दैट मे बी गोइंग फॉर द डिपार्टमेंटल. If it is certain special goods and services, it will go for the statutory corporations. And if it is only the goods where the government also wants to earn some profit, then it may be a government company. तो हमारे तीन हैं, डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी एंड गवर्नमेंट कंपनी. द ओल्डेस्ट and the most traditional form was public enterprise, यानी कि those departments of the ministry जो goods या services public को देता है for its welfare. The government functions through these departments and the activities are integral part of functioning of government. They have not been constituted as autonomous or independent. मतलब कि ये जो है गवर्नमेंट इनको रूल भी करती है, कंट्रोल भी करती है, एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो आंसरेबल. जो भी इनकी फंडिंग होगी वो फंडिंग नहीं होती है, वो बजट होता है. द गवर्नमेंट हैज टू एलोकेट द बजट. These enterprises, these undertakings, इनका कोई लीगल एंटिटी नहीं है. और जो आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, दे जिनको हम अपॉइंट करते हैं थ्रू द व्हाट यू कॉल एज एसएससी, यूपीएससी, दे आर द वन हु होल्ड. बट इनको जो हेड करता है मिनिस्ट्री, वो मिनिस्टर्स होते हैं. द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स: फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड एज आई सेड, जो आपका पैसा इस पर खर्च करना पड़ता है, दैट हैज टू बी थ्रू द बजट. एंड जो रेवेन्यू आता है, दैट हैज टू बी गिवन टू द ट्रेजर. एंड देन देयर इज अ प्रॉपर, जैसे आप लोग अकाउंट्स में अपना बनाते हो, वैसे द गवर्नमेंट हैज टू मेक द एलोकेट द बजट. दे हैव टू फाइंड whether the department is going in loss or in profit. An appropriate fund has to be allocated. इनके जो भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं, दे आर ऑल ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ऑडिट कंट्रोल. एंड जब इनकी रिक्रूटमेंट होती है, द गवर्नमेंट, एज आई सेड, की जो सर्वेंट्स होते हैं, यूपीएससी, एसएससी, इनके थ्रू जो है द रिक्रूटमेंट इज डन.
जो इनके हेड होते हैं वो यूपीएससी यानी कि आईएएस, और जो लोग काम करते हैं ना, व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर वर्किंग इन से रिलायंस इंडिया, आप रिलायंस इंडिया में काम कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यू टुडे यू मे बी वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट, टुमारो यू मे बी ट्रांसफर टू अनदर डिपार्टमेंट। तो दे आर द मेजर सब डिविजन्स एंड ऑल्सो अकाउंटेबल। इनका एग्जैक्टली कोई मैनेजमेंट नहीं होता है। लाइक इन द जॉइंट कंपनी हमने पढ़ा था दैट द कंपनी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उस कंपनी में कुछ भी होता है तो दे आर अकाउंटेबल, द मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ मैनेजमेंट नहीं होता, द एंटायर मैनेजमेंट इज डन थ्रू द गवर्नमेंट प्रोसीजर। सो बेसिकली ये जो हमारे अंडरटेकिंग्स होते हैं, दे आर टू ensure public welfare. In case of any event, they are accountable. It is also the source for income of the government. Apart from, besides हम लोग बोलते हैं income tax, ये भी वो revenues हैं। एंड जहां नेशनल सिक्योरिटी होता है, डिफेंस वगैरह, वहां पर मिनिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट। बट ऑफ कोर्स दीज अंडरटेकिंग जो है ये वैसे नहीं होते, हम बैंक गए, हमें जो चाहिए हमने स्मूथली काम किया, ऐसा नहीं होता है। सिंस ये एक हिरार्की में जाते हैं, द मिनिस्टर के बाद आपके नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर नॉट एक्चुअली आंसरेबल, क्योंकि वो तो सिर्फ उस सीट में बैठे हैं। आज मैं बैठी हूं, कल आप बैठे हैं। सो देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, and these people are also not allowed to take independent decisions also। अगर मान लो आप एक लोन लेने के लिए गए from the government department, and if the concerned person is not there, then वो काम जो है आपका लटकता ही रह जाता है। then all kind of bureaucrats, यानी कि जो आपके हायर, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होता है द पीपल हु आर इन द हायर पोजिशन, IAS, ये लोग होते हैं। सो दे डू नॉट अलाउ टू गो फॉर द रिस्की, जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही जाएगा, एंड काम आपका जो है बंद पड़ेगा, रेड टेपिज्म होगी जब तक वो पूरा एक चैनल से नहीं आएगा। आई हैव पर्सनली मैंने इस चीज को देखा है। क्लर्क, फिर यूडीसी, फिर उसके बाद उस कंसर्न्ड, मतलब जिस आप मतलब कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो अकाउंट डिपार्टमेंट, फिर वहां से वो जाएगा कंसर्न, फिर वहां के डिपार्टमेंट के क्लर्क के पास जाएगा, उस डिपार्टमेंट के क्लर्क जो है वो जाएगा उसके पास यूडीसी, फिर उसके बाद वहां जाएगा, एंड इट विल टेक लॉन्ग टाइम, इवन एक छोटा सा इंटरनल डिसीजन भी हो। एंड इन केस इफ द पर्सन इज एब्सेंट फॉर सम टाइम, देन वो काम लटकता रह जाएगा। एंड दैट इज वाई इफ यू सी कंज्यूमर नीड्स, तो ये इनसेंसिटिव होते हैं। इसके ये डीमेरिट्स जो हैं बहुत अच्छे से लर्न करना आप लोगों ने whenever it comes. The next is statutory corporations. Statutory का मतलब in the literary meaning it is something which is made according to law, यानी कि they are brought into existence जब भी जरूरत पड़ती है। अभी तो फिलहाल तो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द ये जो इवन पब्लिक डिपार्टमेंट्स है उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। लाइक पहले आपका एयर इंडिया वाज अंडर गवर्नमेंट, अब उसको टाटा को दे दिया है। तो बट इफ द गवर्नमेंट फील्स 56-50s के आसपास में द गवर्नमेंट फेल्ड कि कुछ हमारे पास ऐसे होने चाहिए, लाइक इंश्योरेंस, देन आपके सेविंग्स बैंक्स, ऐसे कुछ चीजें आनी चाहिए जिसको आप
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं लेके आ सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट दे आर गिविंग यू स्पेशल सर्विसेज। और इसीलिए हम स्टेचुएटरी को, आपके पेपर में क्वेश्चन आता बच्चा कि स्टेचुएटरी कॉर्पोरेशन जो है गवर्नमेंट एंड आपका प्राइवेट दोनों का मिक्सचर है। तो बिकॉज it has got the independence also, at the same time it is also under the control of government, but they come into existence only when the act is passed. They इस एक्ट के अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, द पावर, द प्रिविलेजेस सबको पहले बताया जाता है, व्हाई इट हैज बीन फॉर्म। इट इज ओन्ड बाय द स्टेट, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, एलआईसी, इसके लिए जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट। बट लाइक हमने जॉइंट कंपनी, जॉइंट पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी कि वो इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन हैव द प्रॉपर्टी। आरबीआई के नाम से प्रॉपर्टी अलग हो सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, एंड दे आर इंडिपेंडेंटली फाइनेंस। कुछ उनको गवर्नमेंट से मिलता है, कुछ उनको जो वो चीजें बेच रहे हैं, जो सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे भी मिलता है। Now in the government what happens is, in the public undertaking, in the departmental undertaking, सारा पैसा ट्रेजर में जाता है। यहां पर सारा पैसा ट्रेजर में नहीं जाता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, अकेला अलग है, so that would be using that revenue. Similarly, it will not be subjected to the government auditing, बट यस इनके लिए अलग से ऑडिटिंग, इनके लिए अलग से आपका जो है मतलब कि वो चलता है, स्क्रूटनी अलग से चलती है, एंड द गवर्नमेंट इज नॉट ऑल्सो एलोकेटिंग एनी बजट। लाइक इफ यू आर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, टुमारो यू मे बी ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। इनका जो भी, अगर आप यूटीआई में, इफ यू हैव अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट इन यूटीआई, आप उसी में रहोगे, आप उसी के ब्रांचेस में रहोगे। आप एलआईसी में हो तो मे बी आप एलआईसी में, टुडे यू आर इन गुवाहाटी, टुमारो यू आर इन इंदौर, लेकिन आप रहोगे एलआईसी में ही, बिकॉज यू आर एम्प्लॉय ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। यस, कभी कभी गवर्नमेंट फॉर सर्टेन एरियाज कभी कभी डिप्यूट करती है, जैसे एलआईसी का जो चेयरमैन है, ही इज अनवेल, तो द गवर्नमेंट में डिप्यूट समवन, बट इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होता है। द फर्स्ट इज बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट हैज गॉट इंडिपेंडेंस, इट इज थोड़ा बहुत फ्री है। आई विल नॉट से इट इज कंप्लीटली फ्री। Most of the time the government does not interfere in the financial matter, but yes, the government do interfere, मैं ये भी नहीं बोलूंगी, but yes, अपने policies, अपने procedures, क्योंकि जो इसको head करते हैं ना, they are all expertise in their field, तो उसके लिए they may be going for the proper, अपना जो उनको implement करना वो करते हैं। yes, अगर उनको कोई स्पेसिफिक पॉलिसी निकालनी है, जैसे अभी वो निकालना था, आईपीओ निकालना था, then they may have to go through the particular ministry. This has been, आपके पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ है, that it has been a valuable instrument for economic development, because इससे आपको रेवेन्यू भी मिलता है, इकोनॉमी डेवलप भी होती है, सर्विसेज भी प्रोवाइड होती है। बट यस, सिंस इट इज अ गवर्नमेंट, तो कुछ आपके ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो रहता ही है। अभी रिसेंटली, जस्ट रिसेंटली इट वाज देयर, आरबीआई के जो चेयरमैन थे, आरबीआई के जो थे हेड थे, उनको अपॉइंट करने में देयर वर लॉट्स ऑफ, इनफैक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग बिकेम एन इश्यू। ये था पैंडेमिक के पीरियड में। तो सर्टेन टाइम्स द गवर्नमेंट इंटरफेयर्स and corruption is very rampant.
देन एज आई सेड एडवाइजरी बोर्ड होता है. गवर्नमेंट कंप्लीटली तो उसको छोड़ती नहीं है ना. इट हैज गॉट द फीचर ऑफ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इंसान होता है. तो सर्टेन टाइम्स देयर माइट बी अ डिसएग्रीमेंट. Now the third one is government company. All the features of a company which we have done in joint stock will be there. It comes under the 2013 Act. जो पहले 56 Act था तो वो भी चलता है. It is purely for the business purposes and in the true spirit of private sector competition. This is Steel Authority of India है. तो जो स्टील है आपका एक्सपोर्ट भी हो रहा है. द स्टील इज सोल्ड इन द ओपन मार्केट ऑल्सो. यानी कि जैसा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी चलता है वैसा ही चलता है. द ओनली थिंग इज इसमें 51%, एटलीस्ट 51% जो पेड अप कैपिटल है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या हो सकता है दोनों मिलकर इसको चलाते हैं. ऑल द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट of the Company Act, MOA, AOA इसमें जाते हैं. Then special provisions are given for the directors and managerial position. बाकी सब कुछ सेम जाता है. The only thing is the share capital is more in the name. इसमें आपके schools में आता है the shares of the company are purchased in the name of dash. So President of India. Because President of India is said to be the permanent position. तो President का नाम नहीं होता है कि उसका नाम द्रौपदी मुर्मू है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है. मतलब जो भी शेयर्स होंगे that would be this is in the name of the President of India. यानी कि वो परमानेंट है. The ruling government may form a company या फिर they may take over. और यही इनमें से कई कंपनीज हैं जिनको अब प्राइवेट सेक्टर्स में दे दिया गया है. Since the government is the major shareholder, exercises control over the management, that is why it is called as government company. We have already done the feature. Formed under Company Act. It's an autonomous यानी कि independent यानी कि it can file a suit, it can enter into contract, it can acquire property. It also has got all the features of public limited like MOA, AOA, defining its features. These companies are exempted from accounting and audit rules. इसके लिए आपका CAG, कंट्रोलर ऑफ अकाउंट जनरल जो है वो अपॉइंट किया जाता है, जो आपके जो है एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है. इनके फंड्स जो है गवर्नमेंट या फिर जो प्राइवेट है 51% अगर मतलब कि गवर्नमेंट है तो डेफिनेटली 49% जो है दैट इज बाकी लोग. तो इफ इन केस द गवर्नमेंट वांट्स कि they want more funding तो ये लोग उसमें जा सकते हैं. they can also raise the funds. इनके आपके डिबेंचर्स बहुत ही कॉमन होते हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, एंड दे आर रियली वेरी वर्थ, क्योंकि आपका एज एन इन्वेस्टर आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है. The merit is it is just like a joint stock company. It has a separate entity, autonomy is there, and सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्टील है. अब स्टील की अगर गवर्नमेंट भी कंपनी रख रही है और एक प्राइवेट भी रखता है तो प्राइवेट को अनरीजनेबली वो जो है इट कैन नॉट चार्ज मोर. अगर गवर्नमेंट किसी चीज को 100 रुपए में दे रही है तो द प्राइवेट ऑल्सो हैज टू गिव इट इन 100 या मैक्स टू मैक्स 100 से 110 हो सकता है, 100 का 1000 नहीं हो सकता. देयर इज अ डिफरेंस, बट द लिमिटेशन इज गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर्स. सो सारे के सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस नहीं डालते हैं. सर्टेन टाइम्स इट इज नॉट आंसरेबल. एंड जैसे बाकी प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है,
हमारा एक होता है टारगेट, हम बोलते हैं टारगेट, वो टारगेट यहाँ फिक्स कई बार नहीं हो पाता। यस, अभी फिलहाल के लिए एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, इन ऐसी कंपनीज जो कि लॉस में जा रही है उनके लिए बीआईएफआर के थ्रू या फिर मैनेजमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करके इनको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, बट सर्टेन टाइम्स इट इज नॉट। द नेक्स्ट इन आवर सिलेबस इज ग्लोबल एंटरप्राइजेस, जिनको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं, जिनका पेरेंट कंपनी किसी बाहर कंट्री में होता, रिच कंट्री में होता है, एंड दे आर मार्केटिंग ऑपरेशंस थ्रू द नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस दे आर हैविंग। These enterprises operate in several areas with multiple products. They do not aim at maximizing profits from one or two, but spread their branches all over. सबसे बड़ी बात यह है कि इससे दो चीजें फायदे हो जाती हैं। द गवर्नमेंट गेट्स, ऐसी कंपनीज को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने की वजह से द गवर्नमेंट इज गेटिंग द फंड्स, रेवेन्यू, and for us we are getting the products. And for the companies जो global enterprises है, उनको क्या फायदा हो रहा है? उनको सस्ते दामों में, जो फोर्ड आपका पहले when it was manufactured in US it was so costly, now it could be bought by anyone across the world. The reason was उसके जो components थे that they started manufacturing in other countries, जहां उनको cheap labor, उनको रॉ मटेरियल्स, उनको मार्केट सस्ता मिला। द फीचर्स, ह्यूज कैपिटल, मतलब उनके पास दे आर एबल टू टैप फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बिकॉज दे विल बी हैविंग द what you call as privilege of GDRs also, they are having the, जो अगर आपके अमेरिकन कंपनी है तो ADRs भी है उनके पास में, उनके पास डिबेंचर्स भी है। They can also borrow money from the local as well as international banks, अच्छी credibility होती है, and even the investors and banks of host country are willing to invest in them. They have the foreign collaborations, इंडियन कंपनीज के साथ ये लोग कोलैबोरेट हुए हैं। दे हैव ब्रॉट देयर, पहले क्या था, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस थी, बट नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स, हाँ कुछ चीजों पे वी हैव टू पे द पेटेंट। अगर हम उनके किसी चीज को यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी को, डिजाइन को, तो करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है। देर आर यूजुअली, ये लिखा हुआ ना, वेरियस रिस्ट्रिक्शन, लाइक अगर आप देखोगे ना कोको कोला, इट इज सेट कि जो कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो उसी इंसान को पता है जो बनाता है, एंड जो एक इंसान, अभी रिसेंटली उस इंसान की डेथ हो गई थी, उसकी जगह दूसरे को जिसको बताया था वही, एंड while they are giving their license to other countries they strictly go with that norms, but yes वो अपने साथ काफी पैसा लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इन्वेंशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च करते हैं ये लोग। सो they are able to conform to the international standards and quality. इससे हर कंट्री का जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है वो होता है। जैसे अभी एप्पल हैज स्टार्टेड इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो हमें भी फायदा हो गया, हमें वो सारी चीजें अब मिलेंगी एट अ लोअर कॉस्ट। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो हैविंग द बेनिफिट, हमें वो टेक्नोलॉजी यहाँ पर मिलेगी वो जो हमारे पास पहले नहीं थी। दे स्पेंड द मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी, डिजाइन, विच आपका एक 12th स्टैंडर्ड में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपका आता है। And it is not possible, आपको पता, I was having a, मतलब एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, तो I came to know, though it is not that much, लेकिन I came to know कि पतंजलि जो है, to
compete with the global companies, they are spending lots of money on research and development. उनके sophisticated, उनके पास they are having the developmental research materials, they are sending their specimens, they are spending their, तो इससे क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हो. जो चीजें पहले पॉसिबल नहीं थी, नाउ वी आर एबल टू. देन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, हर तरीके से मार्केट को कैप्चर करते हैं ये लोग, हर तरीके से. दे आर एबल टू इंक्रीज द सेल्स इन अ शॉर्ट पीरियड. मतलब उनके पास सेल्स प्रमोशन, सेल अपनी मतलब कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो टेक्निक है, दे आर टू हाई. एंड दैट इज व्हाई टुडे इट्स नॉट लाइक, आज अगर आप मूवी देखो या फिर आप कोई भी सर्विस देखो, एवरीथिंग इज नाउ अंडर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. एंड नाउ फिजिकल बाउंड्री से बाहर निकल के दे आर ऑल्सो गिविंग देयर international brands. Like India is now able to take the services of all the international services जो पहले एक सपना होता था. I remember when I was बहुत छोटी सी थी, उस वक्त में Nivea was very costly, but मुझे Nivea क्रीम की जो खुशबू है बहुत अच्छी लगती थी. And my mom used to, अगर मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, इतना छोटा सा डब्बा मम्मा लाके देती थी, and I would be using it for the entire year. अब तो निविया बहुत कम लोग यूज करते से वो ऑयली है. तो ये जो आपका बाउंड्री है आज, इट इज नॉट सो. निविया इज नाउ अवेलेबल इन ऑल द शॉप्स. पहले अवेलेबल नहीं होती थी. दे वर अवेलेबल ओनली इन दोज शॉप्स विच सोल्ड इंपोर्टेड आइटम्स. मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. इनके जो पेरेंट कंपनी है वो अपनी जगह होती है, उन्हीं के रूल्स, उन्हीं के जो है आपके रेगुलेशंस होते हैं एंड सेंट्रलाइज होते हैं. चाहे कैसा उनको, हाँ वो अलग बात है कि लोकलाइज्ड एरिया के अकॉर्डिंग वी कैन फ्लेक्सिबली हम उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे गो फॉर द. The last but not the least of this chapter is PPP. That is public-private आपका partnership. That means when the government, public means ministry, government department, state-owned enterprise, ये किसी भी private firm which may be Indian or any foreign NGO, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग एक मेमोरेंडम को साइन करते हैं. इट मे बी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. आपके पेपर में ये आता पीपीपी मॉडल. पीपीपी मॉडल का मतलब होता है, ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, देन गवर्नमेंट इसको फाइनेंस करती है, प्राइवेट अपना डिजाइन और कंस्ट्रक्शन लेकर आते हैं, तो गवर्नमेंट उनको जो है उसको डिजाइन करने के लिए उनको जो जगह, उनको जो टाइम, उनको जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो देती है. जैसे एक्सप्रेस हाईवेज आपके हुए, आपका जो एक्सप्रेस हाईवे है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट अलोंग विद द प्राइवेट. नोएडा एक्सप्रेस वे आपका हुआ था. अभी और भी ऐसा है, मैंने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था ऑफ द अदानीज इन गुजरात. आपका एंटायर आपका जो एयरपोर्ट है, इट इज गोइंग टू बी रेनोवेटेड बाय अदानी, बट द गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग द मनी. So it ensures that the social obligations are fulfilled, the sector is reformed, and public investments are met successfully. The government's contribution is capital, transfer of assets. जैसे आपको उनको ये भी देखना पड़ता है, environmental awareness, local knowledge. And the private sector is to make use of its expertise in operations, managing tasks and innovation to run the business. Most of the airports are now being renovated under this PPP model only. आपका पूरे
पेपर में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीपीपी मॉडल आ जाता है. Sectors in which PPPs have been completed worldwide includes power generation, water and sanitation, refuse disposal, pipelines, hospitals, school buildings, teaching facilities. अभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं दे आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विथ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन स्कूल्स कोलैबोरेट कर रहे हैं टू प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास सर्विसेज. एयर ट्रैफिक कंट्रोल, प्रिजन, रेलवे, बिलिंग, मतलब ये सारे चीज़ों में दे आर गिविंग दिस पीपीपी मॉडल एंड इट रियली हैज़ वर्कड अ लॉट. So this is the entire syllabus in this chapter, that is आपके तीनों companies तीनों आपके types of government undertakings, departmental, statutory and of course global. And then what is the meaning of global enterprise, its features, and then आपका PPP model. That's the entire chapter 3 in your according to your NCERT.